टू वुमेन एंड जेंडर न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है वुमेन और जेंडर न्यूज़ पे। यहाँ महिलाओं की न्यूज़ की बात मैं करती हूँ एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की तरह से। लेकिन आज मैं कुछ और करने जा रही हूँ। आज मैं फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट, मुस्लिम फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट शेबा असलम फहमी से कुछ बातचीत करने जा रही हूँ। ये हमारी बातचीत करने का जो मन हुआ वो दोनों की तरफ से हुआ। जब ये यूपी का घटना घटा, ये वायरल वीडियो जो यूपी स्कूल से आया जहाँ पे एक टीचर ने मुस्लिम बच्चे को बाकी बच्चों से पटवाया, उसके बाद शेबा और हमने दोनों ने सोचा कि इस पे हमें कुछ बातचीत करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इस पे ही नहीं, मैंने चर्चा करी फेमिनिज़म पे, सेक्युलरिज्म पे, इस देश में मुसलमान होने की क्या क्या कंडीशन है आज उस पे, और हमारे ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम में। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, आप प्लीज़ इसको बंद मत करिएगा। द फर्स्ट थिंग दैट शिवा टोल्ड मी, क्योंकि ये वुमेन एंड न्यूज़ चैनल है, वुमेन एंड जेंडर न्यूज़ है, तो उसने सबसे पहले जो मुझे बोला कि फेमिनिज्म पे अब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। Started my intellectual journey as a feminist and then went on to gender. Then right now what I feel is that the fascist forces are so strong that we need to talk about everyone, and we cannot have a society where others are endangered but only women can be saved. वो बहुत दुख के साथ उसने ये बात कहा कि देखो, जब इस देश में मुसलमानों के साथ ये हाल है कि जहाँ कोई मुसलमान सुरक्षित नहीं है, चाहे वो 8 साल का बच्चा स्कूल में हो, चाहे वो एक आदमी ऑफिस से घर जा रहा हो, ट्रेन में हो, बसों में हो, स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं पे भी जब देश का कोई भी मुसलमान सुरक्षित नहीं फील कर रहा है, तो सिर्फ महिलाओं के मुद्दों के बारे में बात करने का उसको इसमें शी डजंट रियली फाइंड एनी इंटरेस्ट। आइए सुनते हैं उसने एग्जैक्टली क्या बोला। Our men are as much in danger if kids are, adolescents are, youth, and every other category that doesn't belong to the hegemonic class. If you don't have in majoritarian privileges, you are as much endangered as any other category, whether it is a Dalit or a woman or any other category. So I right now feminism doesn't attract me that much. Just like those Nazi those nurses who were killing infants in Nazi Germany, those doctors who were, and those engineers who were creating Holocaust concentration camps, gas chambers. So if you are having everything and you understand what you are doing is wrong and still you do it, what kind of deep evil you have to be? And if you have a majority of people doing that, how do you? I mean, I'm at the loss of words also. And then how do you compensate for the millions of people? How can you mourn the thousands and lakhs of people? Are our lexicons capable of taking care of our the shades of pain we are facing, and the indignations and the distress and humiliation we are facing? I don't know. Everybody has to be really morbid. Those who are victims have to be, out of distress, and those who are the perpetrators are coming from those identities, from that guilt. How are we going to live a normal life? Whichever side we belong to, how are we going to live normal lives? Yeah. These isms do not mean much to me, Shiba told me. ये जो इज़म है फेमिनिज़म, तो मैंने उसको एक और इज़म के बारे में पूछा, सेक्युलरिज्म। मैंने शिवा से पूछा कि क्यों सेक्युलरिज्म शब्द जो है वो एक स्लर की तरह बन चुका है, एक गाली की तरह बन चुका है। क्यों इस देश की जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, जो हिंदू राइट विंग है, वो सेक्युलरिज्म को इतना बुरा मानते हैं। आइए सुनते हैं उसने क्या कहा। Yeah, I think it is because what they want to do in future, it is a major hindrance for them to whatever evil designs or whatever sectarian designs they have for the future organization of the society. Yeah. Secularism has to be a public policy, Sanjukta. That cannot be a personal policy, because there will always be societies where people will believe in have faith, will believe in superior entities, will believe in God and Ishwar and Allah and all these things. So you cannot have an ideal society to say that now this society is ideal to practice secularism. No, it has to be a government policy. As a student of political science, I have studied this only, that any secular society doesn't expect people to be secular in terms of giving up their religion.
in their personal lives. No, it is about how you allocate the resources of the given society, of the given political administrative unit that we call nation state. So the allocation of resources, whatever resources we have within the geographical territory, it has to be allocated in a sense where faith is not the reason for favoring or disfavoring any category. So it has to be a public policy. It has to be the policy practiced by the government. You cannot have governments, building temples by their exchequers and supporting Kavod Yatras or Haj Yatra. When the government will say, and the supporters of the government, the present government will say, but we are not, we have not allocated, our resources are being allocated equally. There is no discrimination. Everybody is getting the Ujjwala cylinder and everybody is getting the free ration and everybody, irrespective of their religion, is getting toilets. So, or bank accounts. This is what they will say. Like, and I don't think personally that we can ignore these arguments. We have to give a counter, or at least give some sort of a response to these arguments. What would your response to that be? That so let us the government is seemingly secular. I got it. So let us have a white paper on Pradhan Mantri Awas Yojana, disbursal of flats or houses to the poor people. Let's have a look at that, and then you decide. Because I know people have been telling me from the interiors, from the hinterlands, from the Mofussil towns, how they were not given, in spite of submitting all the papers and doing all the work, they were not given. So let us have a look, because we don't have accountability. Yeah, right. I'm suggesting that there is a possibility that there is still some sort of a discrimination happening at the ground level, even though on paper these schemes are seemingly all secular schemes. And this discrimination is a work in progress. It is not over yet. So it will manifest more and more. I'm giving you some key ideas on different policies and schemes of Government of India. If you see this scam in the Ministry of Minority Affairs that has just surfaced last week only, that suggests that how many crores were bungled in the name of minority education scholarships and other provisions. So you may call it a regular scam, but it is not a regular scam. How many institutions were registered by others as a minority institution? They benefited from it, and they were not minority institutions. Same happened with other things also. And then when you talk about loans and banks behaving in a sectarian manner, in Old Delhi, loans are not given to Muslims. There is these areas are called gray areas in the bank language, and anybody who howsoever good the civil may be, howsoever good their jobs may be, and the guarantees that they may provide, but if you have a residential proof from the gray area, you will not be given the loan. You will not get the loan. Are you sure this is not coming from a sense of feeling of persecution, but it's not really, or maybe it's a little bit of, and I'm just being the devil advocate here. Can you really say that banks are avoiding giving loans on the basis of religion? Can that even be possible? Anybody can check it out with the banks, whether private or government banks, and find out. I'm just openly telling you for your viewers also. Anybody can check it out with the banks, and they will tell you that there are gray areas, and there is Batla House, Jamia Nagar, Jafrabad, Selampur, Old Jama Masjid. They are the gray areas for many banks. और आखिर में मैंने शिबा से उस वायरल यूपी के उस वायरल वीडियो के बारे में पूछा, जहाँ पे एक टीचर एक मुसलमान बच्चे को बाकी बच्चों से पिटवा रही हैं. शिबा ने मुझे कहा कि द डीप powerlessness and humiliation that a Musliman is facing in this country today. She told me about she compared this incident with the case of that Dalit boy जिसके ऊपर किसी BJP related नेता ने पेशाब कर दिया था. That Dalit on whom a BJP affiliated leader had urinated. She explained this helplessness
कि जहाँ पे ये हो रहा है आपके साथ लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो. शी इज सेइंग दैट द मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री इज फेलिंग दिस लेवल ऑफ हेल्पलेसनेस एंड ह्यूमिलिएशन टुडे. लेट्स लिसन इन. On this UP viral case, that is the viral video that has come from UP about this teacher Tripta Tyagi जिसने मुस्लिम बच्चे को बाकी बच्चों से पिटवाया, उसके बारे में मुझे दो बातें पूछनी, दो चीजें मेरा मेन डिस्कशन ये करना था. एक तो हम ऑलरेडी उस पर बात कर रहे हैं, द बीइंग मुस्लिम इन द कंट्री. फॉर अ मिनट, let's just for a minute, being the devil's advocate, let's listen to what she is saying. Her justification now that has come is कि मैं विकलांग हूँ और दिव्यांग हूँ और मैंने बच्चों को सिर्फ टाइट करने के लिए और उनके डिसिप्लिन के लिए ये बोला कि इनकी पढ़ाई नहीं होती है, तो क्योंकि मैं खुद उठ नहीं पा रही थी तो हमने बच्चों से पिटवा लिया. मतलब खुद नहीं पीट पा रही थी तो वो बच्चों से पिटवा लिया उन्होंने. तो यहाँ पे वो दो चीज को, एक तो वो पिटने को जस्टिफाई कर रही है, दूसरा वो ये कर रही है कि बच्चों को टाइट करने के लिए पीटना. लेकिन साथ ही हमने ये वीडियो में सुना, जो कि वीडियो वायरल हुआ है, कि वो कह रही है कि मोहम्मदन बच्चों के जो माँ है, उसके आगे ऑडियो क्लियर नहीं है तो मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ. तो आप यू टेल मी शिवा, what is she doing? At one hand she's saying that I am just being a teacher and I am doing this normal job of a teacher कि beating करते हैं और बच्चों को discipline करते हैं. But why is she mentioning the Mohammedan name? And I'll tell you also what the right wing now saying. Right wing is saying कि देखो मोहम्मदन बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कितना चिंतित है, वो कितना चिंतित है कि मुसलमान बच्चे पढ़े और आगे बढ़े, तो इसीलिए वो इतनी चिंतित है, इसीलिए वो पिटवा रही है. तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं सोच रही हूँ भाई क्या कहूँ इस बारे में. मतलब इससे ज्यादा ये लोग जब बहाने बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ी इंटेलिजेंस यूज करते हैं. वो ये नहीं सोचते हैं कि वो बच्चों को नहीं बहला रहे हैं, वो पूरे समाज को जवाब दे रहे हैं. तो थोड़ा सॉलिड स्टोरी बनाए, थोड़ा अच्छा फिक्शन क्रिएट करें इसके इर्द गिर्द. वो ये कह रही हैं कि मुसलमान बच्चों को मुसलमान कह के पिटवाना, और उन्हीं के, एक तो ये कि कॉर्पोरल पनिशमेंट को लेकर के हमारे यहाँ ये मामला सेटल्ड है. आप ये नहीं कर, माँ बाप नहीं कर सकते. तो ये वाली बात, ये और स्कूलों के लिए बाकायदा गाइडलाइंस है. हाँ, एक ये चीज. मैंने दूसरी कल बात, वीडियो बनाया ऑलरेडी, राइट, कि हाँ बिल्कुल हाँ, पुलिस में ये दिस इशू अलाउड इज, हाँ ये तो सेटल्ड है. ये कोई ऐसी चीज नहीं कि हम इस पर वी शुड इन्वेंट द व्हील ऑन दिस डिबेट. दूसरी बात ये है कि मोहम्मदन करके वो कितनी कॉन्शियस है वो इस बात को लेकर के, जिसको वो पिटवा रही है वो मोहम्मदन है. तीसरी बात ये है कि वो पिटवाने जो फिजिकल मार है उससे ज्यादा साइकोलॉजिकल मार वो दे रही है. और उन्होंने कहा कि धीरे से क्यों मार रहे हो, जोर से मारो. हाँ, छोटे बच्चों से उन्होंने पिटवाया है उसको. सब बच्चे बैठे हंस रहे हैं, देख रहे हैं, और वो पीटा जा रहा है. और जितनी भी तरह की मार होती है उसमें चेहरे की मार सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग होती है. कोई भी इंसान चेहरे पे थप्पड़ तभी बर्दाश्त करता है जब वो अल्टीमेट पावरलेसनेस में होता है, वरना वो रिटेलिएट करेगा. और वो जो पावरलेसनेस, इफ यू रिमेम्बर दैट गाय who was peed upon, and that person was not trying to escape that pee, and he was not resisting. that powerlessness. उसकी पावरलेसनेस का अंदाजा लगाइए कि उसको ये लगा कि ये हो जाने दो तो ही उसमें मेरी भलाई है ना. ये जो पावरलेसनेस का एहसास है कुछ आइडेंटिटीज में, इसको आप वहां से खड़े होकर महसूस नहीं कर सकती. उसके लिए आपको, आप एक हफ्ता, एक महीना मुसलमान बन के जिए शहर में, कभी जाएं किसी थाने में, किसी दफ्तर में, किसी जगह, कहीं कोई अपनी शिकायत लेके, अपनी कोई बात लेके. तो ये जो पावरलेसनेस का एहसास है वो पावर्टी से बहुत बड़ी बात है. बहुत से लोग, उनके पास खाने को पैसा हो सकता है, रहने को छत हो सकती है, लेकिन ये एहसास भी साथ में हो सकता है कि हमारे पास हमारे बुनियादी हक नहीं है. यानी जान, माल और इज्जत, जिसको तीन चीजें कहते हैं, जान, माल और इज्जत का हक नहीं है हमारे हमको. ये जो मेरे पास है. आप देखिए गौरक्षक क्या कर रहे हैं. गौरक्षक आपकी जान, माल और इज्जत पर ही हाथ डालते हैं. फिर पुलिस आती है, वो भी आपकी दुकानें गिराती है, आपका घर गिराती है, और आपको मौका नहीं देती है कि आप अपना बुनियादी सामान भी लेके जाए. तो जान, माल और इज्जत पर लगातार हमला है. And that is the worst. That creates this kind of helplessness and the sense of powerlessness.
और आखिर में शिबा ने एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाया कि ये जो केस है ये ज़रूर ये साबित करता है कि हमारी ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम, हमारी एजुकेशन सिस्टम कितनी ब्रोकन है। शिबा ने ये सवाल उठाया कि सरकार ने 10 साल में थोड़ा सा भी प्राइमरी लेवल के भी एजुकेशन में कोई भी डेवलपमेंट नहीं लेकर आए हैं, कोई भी चेंज नहीं लेकर आए हैं। उल्टा तमाम स्कूल्स, उसने नंबर भी बताया कि स्कूल्स बंद पड़े हैं और स्कूल्स की बजट कम होती जा रही है। तो चलिए मैं सीधा सुनते हैं कि उसी के शब्दों में मैं आपको सुनाती हूँ कि शिबा ने एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहा। एजुकेशन सिस्टम पे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, संयुक्ता, there is an organization called UDISE, United District Information System for Education. उसकी रिपोर्ट है कि 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं भारत में, 60,000 से ज्यादा, और ये 2 साल पुरानी रिपोर्ट है। आप ये देखिए कि लगातार शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है, कंटिन्यूअसली वी सी बजट कट्स व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। लगातार पीपीपी मॉडल पे, यानी कि जो टैक्स पेयर के पैसे से बने हुए सरकारी स्कूल हैं और जो भवन है, जो उनकी जमीनें हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर को सौंप दो, वो वहां से पैसा कमाना शुरू करें और वो टैक्स पेयर के मनी से वहां से पैसा कमाए और उनको कोई ग्रांट ना दो। दे हैव टू प्रोक्योर फॉर देयर ओन सर्वाइवल एंड दे विल प्रोक्योर इट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। यानी कि आपने देश का जमीन, देश के जनता के पैसे के भवन आपने दे दिए और आपने कहा कि अब तुम इसमें से जितना भी वॉट एवर मिल्किंग यू कैन डू फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है आप उसको पढ़ करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन को लेकर के सारा रवैया क्या है। हम विदेशी यूनिवर्सिटीज की इजाजत देंगे, हम प्राइवेट सेक्टर की इजाजत देंगे और सरकारी स्कूल को लगातार उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने को लगातार टफ बनाते जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करते जा रहे हैं, अपने आप को भी प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट आफ्टर अ gap of 3, 4, 5 years, just like MTNL, BSNL, they will become defunct. Yeah. And people would prefer to send their students, send their wards to not private schools, and then they will come up with this कि यहाँ तो कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, ये हम क्यों इसको मेंटेन करें, so let us get rid of it. और हम इतनी बड़ी सरकार को मेंटेन करते हैं अपने टैक्स के पैसे से, मगर हमारे स्कूल हमारे टैक्स के पैसे से नहीं चल सकते। मुसलमान भी तो उसी तरह टैक्स देते हैं इस देश में जैसे बाकी लोग देते हैं, है ना। ये बताइए कि हम स्मृति ईरानी के शान शौकत, मंत्रालय, कार, फ्यूल, ड्राइवर और उनके नखरे किस लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, किस लिए कि वो ऐसे जनरल तो कोई अच्छी पॉलिसी नहीं लाएंगी आप, वो तो हम आपसे उम्मीद छोड़ ही चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना घट जाए तो आप मुंह सिल के बैठेंगी। तीसरी बात एंगल ये है कि वो लड़का पसमानदा समाज से आता है जिसका इतना बातें करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कि पसमानदाओं के साथ हमें बड़ा करना, सारे लिंच होने वाले, सारे नूह के लोग जिनके जो बुलडोज किए गए, जो ये सारे पसमानदा लोग हैं। तो ये किस बार क्यों गाल बजाते हैं, क्यों ये कहते हैं पसमानदा? अगर वो 2 अंसारियों को पकड़ के लाल बत्ती दे देंगे तो उससे क्या पसमानदा कॉज सेटल हो जाएगा? ये बताइए ना कि अगर वो दिखाने के लिए कि कोई दूसरी पार्टी होती है, बसपा होती तो कोई सिद्दीकी साहब को दे देती, और ये है समाजवादी पार्टी होती तो किसी खान साहब को दे देती, तो बीजेपी है वो किसी अंसारी साहब को दे रही है। लेकिन हमें तो पॉलिसी चाहिए, हमें तो फेयरनेस चाहिए, हमें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए, हमें तो जस्टिस एंड फेयरनेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ चाहिए। एक पुलिस वाला वर्दी में बोगी में ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों को भून देता है। एक लड़की जो फर्स्ट आती है गुजरात में, उसको हटा करके सेकंड और थर्ड को अवार्ड दिया जाता है, उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है। मुसलमान कुछ भी नहीं मांग रहा है इस नेशन स्टेट से, कोई डिमांड नहीं है, और इसके बावजूद ही हो रहा है। You know what you're saying is I'm agreeing with everything that you're saying, but at the same time अगर आप राइट विंग से किसी से बात करो तो बोलेगा कि इस देश में हिंदू ही पीड़ित है, इस देश में सब कुछ मुसलमान को ही मिल गया, हिंदू ही इस देश में विक्टिमाइज्ड है, सैकड़ों साल से विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं। एंड आई डोंट नो कि ये जो कम्युनिकेशन नैरेटिव कहाँ कैसे, I mean we know how it began and I don't know how to break it, how to challenge it. हिंदू कॉर्पोरेट मीडिया ने ये नैरेटिव खड़ा किया है आरएसएस के साथ मिलकर के। आरएसएस इस पर 100 साल से काम कर रहा है। रिमेंबर, बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि इस तरह की जब घटनाएं घटती तो कह देते हैं तालिबानाइजेशन हो रहा है। ये तालिबानाइजेशन नहीं, तालिबान माइट हैव रन फ्रॉम यू, वो सिर्फ 30 साल पुराने हैं। और दूसरी बात, तालिबान भी
औरतों को नंगा करके घुमा के गैंगरेप करके नहीं मारते हैं, वो सीधे, वो बहुत क्रूर हैं, गोली मारते हैं सीधे, दे आर क्रूएलेस्ट ऑफ द क्रूएल, बट दे डोंट ह्यूमिलिएट वुमेन by first stripping them naked, taking them around the village or town and then gang rape them and kill them. ये भारत में ही होता रहा है। तो ये जो छुपते हैं आप जाकर के कि तालिबान की क्रूअल्टी के पीछे जाकर के छुप जाएं कि हम वैसे होने लगे हैं, नहीं नहीं, आप उनसे बहुत आगे हैं। दूसरी बात, आप जो बात कह रही थी कि जो नैरेटिव है कि हिंदू ही पीड़ित है, ये इसी पर तो मेहनत की है। पहले विक्टिमहुड क्रिएट किया आरएसएस ने, कि तुम विक्टिम हो क्योंकि तुम्हारे, जबकि उस दौर में जब हिस्ट्री की जो बात होती है, राजा आपस में लड़ रहे थे, वो इस देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपना राजपाट बचाने के लिए लड़ रहे थे। हिंदू राजाओं ने मुसलमान आक्रांताओं को, हमलावरों को बुला करके अपने ही कजिन्स को और अपने भाइयों को पिटवाया। सारी हिस्ट्री इससे भरी पड़ी है। बुनियादी तौर पे वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी ऑफ सेटअप ऑफ स्कार्सिटी वेयर एवरीथिंग इज स्कार्स, और इस वजह से लोग, जनता आपस में नफरत करती रहेगी। अगर इसी सरकार ने सिर्फ और कुछ नहीं किया होता, एक फंक्शनल अप टू डेट एजुकेशन सिस्टम दिया होता, प्राइमरी एजुकेशन 10 तक की एजुकेशन सब सिर्फ ठीक कर दी होती, तो बहुत सारा जो मनमुटाव है जनता का आपस में वो नहीं होता। दलित ब्राह्मण से लड़ नहीं रहा होता, हिंदू मुसलमान से लड़ नहीं रहा होता, अमीर गरीब से लड़ नहीं रहा होता। ये जो कास्ट, क्लास और कम्युनल एंगल्स हैं इन सारी चीजों के, वो सिर्फ इसलिए कि सबको लगता है कि हमारे हिस्से का इसको मिल गया। ये जो स्कार्सिटी में हमें मजबूर कर दिया गया रहने के लिए, इससे हम एक दूसरे पर से नफरत कर रहे हैं। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट टर्निंग इनटू फासिस्ट, so that it can avoid the genuine questions of the common man, of the citizenship. शिवा, थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर दोबारा बात करते हैं। मुझे आगे मुस्लिम फेमिनिज्म पे भी बात करनी है तुमसे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग शिवाज इंटरव्यू। आई होप कि हमने कुछ लाइट वी हैव थ्रोन ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ फेमिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम एंड बीइंग मुस्लिम इन दिस कंट्री। आई होप यू एंजॉयड दिस इंटरव्यू। आई एम ट्राइंग टू गेट मोर इंटरव्यूज फ्रॉम इमर्जिंग एक्टिविस्ट्स। क्या होता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आप लगातार वही कुछ गिने चुने फेसेस को देखते हैं, वही कुछ लोग आते हैं डिबेट्स में, वही कुछ लोग आपको दिखाई देते हैं जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करते हुए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ इमर्जिंग फेमिनिस्ट, इमर्जिंग एक्टिविस्ट्स, इमर्जिंग रिसर्च स्कॉलर्स को इस चैनल पे लेके आऊँ और यहाँ पे हम अलग अलग विषयों पे चर्चा करें जो फेमिनिज्म रिलेटेड भी है लेकिन ह्यूमैनिज्म रिलेटेड भी है, ह्यूमन राइट्स के बारे में भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों से सभी मेरा बस यही निवेदन है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने अपने लेवल पे शेयर करें और मेरा हौसला अफजाई करते रहें इस काम को करने में। ये मैं पूरी तरह से अपनी नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव चला रही हूँ, मैं किसी से भी इसके लिए कोई पैसा, कोई फंडिंग नहीं ले रही हूँ। सो थैंक यू सो मच।